Hello everyone. Today I will talk about multi-enzyme complexes in metabolism. Metabolism is sum total of all the chemical reactions taking place in a living entity in order to carry out extraction of energy from the environment and using that energy for various biological functions. Catabolic and anabolic reactions. So, metabolism is basically sum total of catabolic and anabolic reactions. So, in catabolic reaction energy is extracted, in anabolic reaction that energy is used for biosynthesis. Now enzymes play a very important role in metabolism because almost all the chemical reactions taking place in body are catalyzed by enzymes only. So, while studying metabolism, while studying different metabolic pathways, you will come across with multi-enzyme complexes. ठीक है, और अभी तक शायद हो भी गया होगा आपको एक्सपोजर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस. सो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? दीज आर एज द नेम ओनली सजेस्ट मल्टी एंजाइम्स. सो दीज आर by definition multi enzyme complexes are stable assemblies of more than one enzyme generally carrying out the sequential reactions of a pathway. Okay, so these are stable assemblies of more than one enzyme carrying out catalyzing the sequential reactions of a pathway. Okay, so generally multi enzyme complexes जो होते हैं वो more than they catalyze more than one reactions generally in the pathway. तो एक examples देख लेते हैं जो which you will come across. Few examples we'll see. Pyruvate, dehydrogenase complex, fatty acid synthase, then tryptophan synthase, then enzymes of the citric acid cycle, enzymes of the TCA cycle. Apart from that, enzymes of the electron transport chain, and there are many more. You will come across with many examples of multi-enzyme complexes. So these are some main examples of multi-enzyme complexes. So you know that pyruvate dehydrogenase complex, it carries out oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl coenzyme A. Okay, then that enters into the TCA cycle. So it carries out the reaction. Basically, this enzyme carry out the reaction which links glycolysis with the TCA cycle. Okay, so this one example. Then fatty acid synthase. This enzyme is involved in synthesis of fatty acids. So it is a multifunctional enzyme. Then tryptophan synthase carries out synthesis of tryptophan. So it is a multi-domain enzyme, the multi-enzyme complex. Then enzymes of the TCA cycle. So आपको दो तरह के जनरली दो तरह के दिखेंगे मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस. एक तो वो जो डिफरेंट एंजाइम सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ कोवलेंट लिंकेज में होती हैं. ठीक है, कोवलेंट इरिवर्सिबल लिंकेज में होती हैं. इसके अलावा इस तरह के भी आपको मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे लाइक दोज इन्वॉल्व इन TCA साइकिल, एंजाइम्स ऑफ द TCA साइकिल, जो कि जब साइकिल हो रही होती है तब these enzymes they come together and they form multi-enzyme complexes. So they come together, they form non-covalent reversible bondages between each other. ठीक है, तो non-covalent reversible bonding के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. They interact with each other, they carry out the pathway, and then they after the pathway when they are no longer required they dissociate. ठीक है, तो दो तरह के मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. तो इसमें TCA साइकिल के जो एंजाइम्स हैं कुछ साल पहले ही हमें पता चला है कि
ये जो एंजाइम्स हैं ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द साइकिल, ठीक है, और इनको कहते हैं मेटाबोलोन्स। एंजाइम्स ऑफ द TCA साइकिल, ठीक है। पहले नहीं पता था पर अब आपको स्ट्रायर और लिनेंजर दोनों में पढ़ने को मिलेगा कि नाउ देयर आर एविडेंसेस कि जो TCA साइकिल के जो एंजाइम्स हैं ड्यूरिंग द साइकिल दे कम टुगेदर, दे फॉर्म नॉन कोवलेंट रिवर्सिबल बॉन्ड्स बिटवीन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, एंड सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मेटाबोलोन्स टू कैरी आउट द पाथवे। और एक बार जब पाथवे ओवर हो जाती है तो फिर ये भी डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें पढ़ेंगे। तो दो तरह के हो गए। अच्छा, इसमें एक कैट भी, दिस इज़ ऑल्सो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन डी नोवो सिंथेसिस ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दिस इज़ इन्वॉल्व्ड इन de novo synthesis of pyrimidine nucleotide. So it carries it catalyzes the first three reactions of the de novo synthesis of pyrimidine nucleotide, the pathway. तो इसमें हम लोग let me discuss CAD in detail. So I will discuss CAD in a little detail. So CAD is basically a polypeptide chain, a single polypeptide chain folded into 3 domains, and each domain has a distinct enzyme activity, ठीक है। सो कैट जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो फोल्ड करके 3 डोमेन्स बनाती है और हर डोमेन जो है वो एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है दैट कैरीज 3 एंजाइम्स, जिसमें कि 1 डोमेन इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, द अदर वन इज aspartate transcarbamylase, and the third one is dihydroorotase, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शंस कैटालाइज करता है पाथवे का, ठीक है। तो ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें कि ये 3 एंजाइम्स है। तो अब ये जो CPS है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, इट इटसेल्फ हैज़ अ 3 रिएक्शन साइट। तो इसको हम देखें तो सिर्फ अगर ये इकलौता यही जो है, दिस एंजाइम हैज़ अ 3 रिएक्शन साइट्स फॉर 3 रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर इसी को देखेंगे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, तो ये क्या करता है, इट कैरीज आउट सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट फ्रॉम बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया, ठीक है। और इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो कंज्यूम्ड इन दिस। तो दिस कैरीज आउट, दिस एंजाइम कैरीज आउट
दिस रिएक्शन, ठीक है। इसमें बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद अमोनिया and 2 ATP molecules are involved in this to finally form carbamyl phosphate, ठीक है। So this CPS2 catalyzes this reaction, and this CPS basically has 3 reaction sites, 1, 2 and 3, जो 3 circles हैं इसमें, ठीक है, 3 reaction sites which carries out 3 reactions. The first one is ग्लूटामीन हाइड्रोलिसिस साइट। पहली साइट है ग्लूटामीन हाइड्रोलिसिस साइट। द सेकेंड वन इज बाइकार्बोनेट phosphorylation site, and the third one is कार्बामेट फॉस्फोरिलेशन साइट, ठीक है। तो इसमें द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइड चेन ऑफ ग्लूटामीन इज़ द बेसिकली सोर्स ऑफ द अमोनिया फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें जो ये अमोनिया है इसका जो सोर्स है वो है ग्लूटामीन का साइड चेन, जो अमोनिया जो है अमोनिया ऑफ द साइड चेन ऑफ ग्लूटामीन अमाइनो एसिड, that is the source of ammonia here, which is mainly used here. तो इसमें क्या होता है, this is the first reaction site, तो यहाँ पे ammonia is formed here, ठीक है। यहाँ पे ammonia form होता है, उसके बाद फिर this is the second and third reaction site. These are the 2 ATP GRAS domains, इनको ATP GRAS domain कहते हैं, ठीक है। तो ATP GRAS domain, so there are 2 ATP GRAS domains, this and this, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, in the second domain bicarbonate phosphorylation, this is a site for bicarbonate phosphorylation। तो यहाँ पे ATP जो है that is used for phosphorylation of bicarbonate anion, ठीक है। उसके बाद the third site is that is carbamate phosphorylation site, and this is a ATP, again a ATP GRAS domain where carbamate is phosphorylated with the help of ATP, ठीक है। तो कार्बामेट फॉस्फोरिलेशन साइट है, तो इससे फिर कार्बामाइल फॉस्फेट इज फॉर्म्ड, ठीक है, विच इज़ रिलीज फ्रॉम दिस साइट, ठीक है। इस साइट पे फॉर्म होगा एंड देन इट विल बी रिलीज्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, और the main thing about this structure is that there is a substrate channel in between the enzyme के बीच में एक substrate channel होती है, which is a tunnel, sort of tunnel, through which the intermediates of these 3 reactions they move, ठीक है। इस चैनल के थ्रू ये मूव करते हैं, they move from one reaction site to the other reaction site, ठीक है। सो कैड है, कैड में ये 3 एंजाइम्स हैं, और उनमें से भी एक एंजाइम के बीच में ये 3 रिएक्शन साइट्स हैं। तो दिस इज़ अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स विच इज़ इन्वॉल्व इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। तो ये शुरू के 3 रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट, उसके बाद फिर देन स्पार्टेड ट्रांसकार्बामाइलेज इज फॉर्म्ड, देन द सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, एस्पार्टेट जो है दैट रिएक्ट्स विद कार्बामाइल फॉस्फेट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट, देन दैट रिएक्ट्स विद उसके बाद फर्दर रिएक्शंस होते हैं और डाईहाइड्रो ओरोटेट इज फॉर्म्ड, ओरोटोडाइलेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो जो भी है ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है इसमें फॉर्म होता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज
No, the question is that what is the importance of these multi-enzyme complexes? Why multi-enzyme complexes are required? क्यों चाहिए multi-enzyme complexes? इनका क्या benefit है metabolism में? So the answer in one line is that it improves the efficiency of the metabolism. Metabolic reactions की efficiency को improve करते हैं. कैसे improve करते हैं? By two things. By hindering diffusion of substrates or intermediates into the matrix. ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट्स हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस के, सबस्ट्रेट है और इंटरमीडिएट्स हैं, वो कहीं मैट्रिक्स में लॉस ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं निकल के बाहर चले ना जाएं. तो इसीलिए इस तरह का एंजाइम सेटअप होता है जिसमें इंटरमीडिएट जो हैं वो एक रिएक्टिव साइट से दूसरी रिएक्टिव साइट पे अंदर थ्रू द सबस्ट्रेट चैनलिंग दे मूव फ्रॉम वन रिएक्टिव साइट टू द अनदर रिएक्टिव साइट. तो उससे क्या होता है, उनका जो लॉस है वो लॉस नहीं होते, वो दैट इज़ प्रोटेक्टेड. सो दे आर रेडिली यूज्ड. ठीक है, तो दे आर नॉट लॉस्ट इनटू द मैट्रिक्स, इनटू द साइटोसोल. ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है. तो एक यूपी में कहते हैं ना पकड़ के मारना, इसको पकड़ के मारेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि पकड़ लेते हैं इंटरमीडिएट्स को, जाने नहीं देते हैं, उनको यूज़ करते हैं फर्दर रिएक्शन के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग. द अदर थिंग इज़ दैट इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ labile intermediates. The labile intermediates, it prevents this kind of setup, prevents the loss of labile intermediates. तो अगर इस तरह के intermediates हैं जो बहुत जल्दी decompose हो जाते हैं, तो उनके लॉस को रोकने के लिए भी इस तरह का जो सेटअप है वो बहुत efficient रहता है. ठीक है, so these are two things. So जो हमारा जो metabolic design है that is a coherent design. That means ये जो design है हमारा metabolic design, that is based on logic and reasoning. तो ये काफ़ी intelligent design है. तो इसमें and this ये जो multifunctional enzymes है that are the part of the intelligent system that we have. So बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया देना था मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में. आई होप आपको चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी. मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसमें बेसिकली कई सारे एंजाइम जो हैं वो एक से ज़्यादा एंजाइम जो हैं वो एक स्टेबल असेंबली में होते हैं. ठीक है, जिसमें सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट से अलग अलग इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं अंदर ही, तो वो अंदर ही रहते हैं. एक तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन भी होती है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में, एक तरह का कंपार्टमेंट जैसा फॉर्म कर देते हैं ये. ठीक है, घेर लेते हैं इंटरमीडिएट्स को. इंटरमीडिएट्स अंदर, सबस्ट्रेट अंदर आता है, तो अलग अलग एंजाइम्स जो उसमें होते हैं वो दे कैटालाइज द रिएक्शन. तो अंदर ही अंदर जो इंटरमीडिएट्स हैं जो थ्रू द सबस्ट्रेट चैनलिंग वो अंदर ही अंदर मूव करते हैं, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है दैट इज़ रिलीज्ड इनटू द मैट्रिक्स. तो एक एफिशिएंट सिस्टम होता है. तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा. ठीक है, सो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई एम रेडी टू क्लियर द डाउट. ओके, नमस्कार.